پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدہ صورتحال میں بہتری آنے کے بعد دونوں ممالک کے سفیر 26 جنوری سے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور ایران نے دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی ملاقات کے بعد اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اسلام آباد اور تہران کے سفیر 26 جنوری سے دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ ایران میں بلوچ لبریشن فرنٹ کے ٹھکانوں پر پاکستانی اسٹرائیک کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی ابتدائی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ ہلاک دہشت گردوں میں دوستہ عرف چیئرمین ساحل عرف شفق، محمد وزیر عرف وزرو، سرور عرف ولد اصغر اور بجر عرف سوغات شامل ہے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ اصغر عرف بشام کا بیٹا سرور بھی شامل ہے۔ ہلاک دہشت گردوں میں ساحل لنگ عرف شفق بھی شامل تھا، جو کہ معصوم پاکستانیوں اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف متعدد دہشت گرد حملوں میں ملوث رہا ہے۔ ساحل لنگ دہشت گرد بلبل کا بھائی تھا، جو کہ مارکیٹ اور ہرنائی کے علاقے میں بھتے اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھا۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر سے چین کے نائب وزیر خارجہ سن ویڈونگ نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ دفاعی تعاون مزید بڑھانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل آصف منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات علاقائی امن اور استحکام کی مشترکہ سوچ پر قائم ہیں۔ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات دونوں ممالک کے عوام کی خوشحالی کی مشترکہ سوچ پر قائم ہیں۔ اس موقع پر چینی نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین ہر طرح کے حالات میں اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ چینی نائب وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشوں کا اعتراف کیا۔ سی پیک منصوبوں کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر چین کے اطمینان سے بھی آگاہ کیا۔ اگر نواز شریف کو یہ جج نہ نکالتے، یہ 5 جج اپنے ملک کے وزیر اعظم نواز شریف کو نہ نکالتے، آج اس شہر میں مانسیرا میں ایک خوبصورت ترین ایئرپورٹ ہوتا، خوبصورت ترین یہ شہر ہوتا، اور عین ممکن ہے خوبصورت ترین ایک میٹرو بس ہوتی یہاں پہ، اور اسلام آباد سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کے مظفر آباد تک ایک خوبصورت ٹرین ہوتی، ٹرین ریل گاڑی اور ہوتی، اور اسی دور میں ہوتی ہے 2022 سے پہلے مکمل ہو چکی ہو۔ پاکستان کو بگاڑنے والے اسے بگاڑ کر چلے گئے اور اسے بگاڑنے والوں کو ووٹ KP والوں نے ہی دیا تھا۔ قائد نون لیگ نواز شریف کا مانسیرا میں جلسے سے خطاب، کہا KP کے بتائیں کہ صوبے میں کیا کوئی تبدیلی آئی، کیا نیا پاکستان بن گیا۔ 2013 کے الیکشن میں فضل الرحمان میرے پاس آئے اور کہا کہ میرے پاس بھی ارکان اسمبلی بہت ہیں، آپ اور ہماری حکومت مل کر KPK میں حکومت بنا سکتے ہیں۔ اس پر میں نے جواب دیا کہ عدد کے اعتبار سے PTI کے چند نشستیں ہم سے زیادہ ہیں، اس لیے حکومت انہیں ہی بنانی چاہیے، اور انہیں صوبے میں حکومت ملی، مگر انہوں نے اس صوبے کا برا حال کر دیا۔ نہ آندھی دیکھی، نہ طوفان دیکھا، نہ موسم دیکھا، ایک ایک انسان کی مانسیرے والے کی خدمت میں وہ حاضر رہے۔ اور میں جانتی ہوں وزیر اعظم چاہے نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب سے اگر اور نواز شریف صاحب سے اگر کیپٹن صفدر نے بات کی ہے تو مانسیرا کے ترقیاتی منصوبوں کی بات، کہ مانسیرا میں کوئی سڑک بن جائے، کوئی ہاسپٹل بن جائے، کوئی کالج بن جائے، کوئی یونیورسٹی بن جائے، مانسیرا میں گیس آ جائے۔ اور یہ میں بار بار ان سے سنتی ہوں کہ دور دراز جو علاقے ہیں تور غر وغیرہ کے وہاں سڑک بن جائے کہ وہاں خواتین اسپتال لاتے لاتے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ آج جو بھگت رہے ہیں انہیں کوئی بد دعا نہیں دینا چاہتی۔ مانسہرہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ جو لوگ ملین ٹری سونامی کا نعرہ لگا کر آئے وہ پہلے سے لگے ہوئے درختوں کی لکڑی بھی بیچ کر چلتے بنے۔ خیبر پختونخوا کوئی تجربہ گاہ نہیں کہ آئے، تجربہ کیا اور چل دیے۔ مجھے افسوس ہے اس انسان نے آپ کا بھلا نہیں سوچا۔ پشاور میٹرو بس چلتی کم اور جلتی زیادہ ہے۔ جو 10 سال خیبر پختونخوا میں حکومت کر کے گئے وہ کوئی ایک ہسپتال، کوئی سکول، کوئی میٹرو بس دکھا دیں جو یہاں کے لوگوں کے لیے بنائی ہو۔
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को शिकस्त देने के लिए पीटीआई के कारकुनों का साथ मांग लिया। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ के गढ़ लाहौर में पावर शो किया, जिस दौरान जलसे में शरीक उनकी बहन आसफा भुट्टो भी कारकुनों का जोश बढ़ाती रही। खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासी मुखालफिन की बहनों और बेटियों को जेलों में डालना सियासत नहीं, नून लीग पीटीआई कारकुनों से इंतकाम ले रही है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारी असम्बलियां कुरान और हदीस से मुतसादिम बिल पास करने वालों से भरी हुई हैं। कबीर स्टेडियम लकी मरवत में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दीगर पार्टियों ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया और एक मखसूस तबके का पेट भरा जा रहा है। 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई और इस नतीजे में हुकूमत आई, और वो लोग जो धांधली के खिलाफ हमारे साथ खड़े थे, आज वही लोग उसी धांधली वाली पार्टी का टिकट लेकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून वाले हमेशा डील करके इक्तदार में आते रहे हैं। लोग अब एक नई सोच की तरफ जाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने नई सोच का नारा दिया है। बिलावल भुट्टो सबसे बड़ा नारा दे रहे हैं कि तमाम पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाएं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन कह रहे हैं कि मेरा नून लीग और पीटीआई से मुकाबला नहीं, हमारा मुकाबला गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से है। मुश्किल से मुश्किल हालात में पीपल्स पार्टी ने इदारों पर हमले नहीं किए। ज़ोब में फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला ज़ोब के इलाके संबाजा सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। कब्जे से असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। माहिर मईशत खुरम शहजाद ने कहा कि 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करना मुमकिन नहीं। सियासी जमातों को इससे इज्तनाब बरतना चाहिए। सच बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इक़्तिदार में आने के बाद वही किया जाएगा जो IMF कह रहा होगा। उन्होंने कहा कि सोलर पावर से बहुत ज्यादा बिजली नहीं पैदा की जा सकती, हमें पानी से बिजली बनाने की तरफ जाना पड़ेगा। ये हो सकता है कि बिजली में शामिल किए गए टैक्स को कम किया जाए। बिजली के निर्खों को नीचे लाने के लिए कोशिशें की जानी चाहिए। ये एक अफवाह फैलाई जा रही है कि जो PTI के नामजद उम्मीदवार हैं मुंतखब होने के बाद वो किसी और पार्टी में चले जाएंगे क्योंकि उनकी हैसियत आज़ाद मेंबर की होगी। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। देखिए, जिस किसी ने अपने नॉमिनेशन पेपर में ये कहा कि वो PTI का मेंबर है, PTI का उम्मीदवार है, मैं ये कहता हूं कि वो मुंतखब होकर भी PTI ही का उम्मीदवार रहेगा, उसकी हैसियत आज़ाद नहीं होगी। और इसके लिए हम अदालत में भी जाएंगे, अदालत से ही हम फैसला भी लेंगे। इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि हम आजाद हैं बिल्कुल गलत है। मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर पे लिखा है मैं PTI का उम्मीदवार हूं। मैंने अपना टिकट जो PTI ने जारी किया वो RO के पास जमा कराया है। किस तरह कोई मुझे आजाद कह सकता है? लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि हम सब उम्मीदवारों को आप सब के सामने पेश होकर कुरान पाक पे हल्फ लेना चाहिए कि हम PTI के वफादार नहीं। इंशाअल्लाह। N128 से PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने कुरान पर हल्फ ले लिया। सलमान अकरम राजा ने हल्फ लेते हुए कहा, सबसे पहले मैं खुद कुरान पाक पर हल्फ लेता हूँ। मुंतखब होने के बाद हम ऐवान में PTI की पार्लिमानी पार्टी होंगे। मुंतखब होने पर PTI और बानी PTI का वफादार रहूंगा। पार्लियामेंट के अंदर मैं PTI की पार्लिमानी पार्टी का मेंबर रहूंगा और तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं PTI या बानी PTI से गद्दारी करूं।
पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर की इंतखाबी निशान से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को उन्हें मलका का निशान देने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शकील और जस्टिस वकार अहमद ने पीटीआई के उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर के इंतखाबी निशान से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की, जिस दौरान अली अमीन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि अली अमीन NA-44 BI खान और 2 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने 8 फरवरी को शेड्यूल आम इंतखाबात के मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में कहा कि इंतखाबात में चुनाव ही ना हो तो ऐसे इंतखाबात के क्या मानी है। मुझे गिरफ्तार किया गया ताकि मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊं। हमारे कारकुनों को डराया धमकाया गया और गिरफ्तार किया गया। बिला जवाज हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। मेरे भाई के कागजात मंजूर हुए तो उन्हें नैब में मेरा शरीक मुलजिम बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन अपने फराइज की अंजाम दही में बुरी तरह नाकाम हो गया है। इन हालात में मेरा ग्रुप इंतखाबात के मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान करता है। इलेक्शन कमीशन ने सरगोदा से कौमी असम्बली के हलकों NA-83 और NA-85 में इंतखाबात मुलतवी करने के रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिफिकेशन मंसूख कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने RO और DRO के फैसले की रोशनी में NA-83 और 85 पर आजाद उम्मीदवार सादिक अली के इंतकाल के बायस इंतखाबात मुलतवी कर दिए थे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का कहना है अदालती फैसले अवाम की मकबूलियत होते हैं, लेकिन पाकिस्तान और बैरून मुल्क अदलिया के खिलाफ घटिया और गलीज मुहिम चलाई गई। PTA और FIA हुक्काम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते मुर्तजा सोलंकी का कहना था आइन के आर्टिकल 19 में आजादी इजहार राय से मुताल्लिक तफसीली तौर पर लिखा हुआ है अदालती फैसले अवाम की मकबूलियत होते हैं, लेकिन अदलिया के खिलाफ मुल्क और बैरून मुल्क घटिया और गलीज मुहिम चलाई गई। अदम बर्दाश्त और झूठ के कल्चर की हौसला शिकनी होनी चाहिए। अदलिया के खिलाफ मुहिम JIT तश्कील दी गई। अदलिया के खिलाफ मुहिम में शामिल कई 100 अकाउंट्स बंद किए गए। दुनिया भर के मुसलमानों की तरह पाकिस्तानी भी जल्द ही रमजान के मुकद्दस माह के लिए तैयारियां शुरू कर देंगे, क्योंकि मुतवक्के आगाज की तारीख 2 माह से भी कम रह गई है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक पाकिस्तान में यकम रमजानुल मुबारक 11 मार्च को होगा। ताहम हतमी तारीख का ऐलान मरकजी रूयत हलाल कमेटी चांद नजर आने के बाद करेगी। दुनिया भर के मुसलमान मार्च में रमजान का इस्तकबाल करेंगे। यूं रवा साल रमजानुल मुबारक 26 साल के बाद सर्दियों में आ रहा है। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की जगह मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नामजद करने का फैसला कर लिया गया। सहाफी ने मोहसिन नकवी से सवाल किया कि आपको चेयरमैन PCB लगाया जा रहा है, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि क्या वाकई मुझे चेयरमैन PCB लगाया जा रहा है। उन्होंने सर हिलाकर चेयरमैन PCB से मुताल्लिक तस्दीक की और कहा कि कोशिश करूंगा क्रिकेट के मामलात को भी तेजी से हल करूं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन का मसला हल होने तक इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर न लाने का ऐलान किया है। इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली का मामला वाहिद रास्ता है जिसमें हम फ़लस्तीन के लिए फ़ायदा हासिल करेंगे, क्योंकि फ़लस्तीन के मसले को हल करने के लिए हमें इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इस्तेहकाम के ज़रिए ही ये मसला हल हो सकता है।
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने गजा के बच्चों की मदद के लिए अपने जूते नीलाम करने का ऐलान कर दिया। उस्मान ख्वाजा ने अपने जूतों की नीलामी का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया, जहां उन्होंने जूतों की तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि मैं अपने जूते नीलाम कर रहा हूं और नीलामी 12 फरवरी को खत्म होगी। उस्मान ख्वाजा ने कहा कि बच्चों को आपकी मदद की पहले से बहुत ज्यादा जरूरत है। तमाम आमदनी यूनिसेफ चिल्ड्रन ऑफ गजा अपील के लिए होगी। साबिक कप्तान शोएब मलिक की अदाकारा सना जावेद से दूसरी शादी के ऐलान के बाद जहां दोनों शख्सियात के लिए मुबारकबादों का सिलसिला जारी है, वहीं शोएब मलिक की पुरानी कई वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। शोएब मलिक की साबिक स्पीड स्टार शोएब अख्तर के साथ निजी टीवी के शो में की जाने वाली गुफ्तगू भी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें साबिक कप्तान लड़कियों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। इंटरव्यू में शोएब अख्तर ने शोएब मलिक से सवाल किया कि वो कौन सी 5 लड़कियां हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, चाहे फिर उनका ताल्लुक किसी भी इंडस्ट्री से हो। इस सवाल के जवाब में शोएब मलिक ने कहा कि मुझे सारी लड़कियां अच्छी लगती हैं। I want to tell everybody on this show कि I think Zainab will agree with me. आप कोई भी पाकिस्तान क्रिकेटर्स की फेवरेट टॉपिक है बीवियों का मजाक उड़ाना। ट्रू। ये कब तो हुआ? उसके लिए आप दूसरे शो पे आए, ये शो पे वो नहीं चलेगा। कब हुआ? उसके लिए हम I think दूसरा that's शो the करेंगे आपके only लिए thing जब they आप can do. बीवियों को रोस्ट करेंगे। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की पुरानी वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की ज़हनियत पर तनकीद की है। वीडियो में वहाब रियाज कहते हैं कि हाँ जी, बेचारी लड़कियां ही मासूम होती हैं, हम तो बेचारे बुरे लोग हैं, लड़कों की कोई अच्छी आदत ही नहीं होती। वहाब रियाज की बात काटते हुए शोएब मलिक ने कहा कि हमारा ये है कि हम पैदा होते हैं, हमें प्यार मिलता है, उसके बाद डांट से काम शुरू होता है, पहले वालिदैन से, फिर बीवियों से, और फिर यह सिलसिला जारी रहता है। शोएब मलिक की बात मुकम्मल होते ही सानिया मिर्जा कहती हैं, मैं इस शो के जरिए तमाम लोगों को एक बात कहना चाहूंगी और मेरे ख्याल से ज़ैनब भी इत्तफाक करेंगी कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का पसंदीदा मौजू बीवियों का मजाक उड़ाना है। शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा और मॉडल सना जावेद ने अपने दूसरे शोहर शोएब मलिक की कामयाबी पर सोशल मीडिया पर पैगाम जारी कर दिया। कौमी क्रिकेट की इस कामयाबी पर जहां उनके मद्दाहों ने उन्हें मुबारकबाद दी, तो वहीं उनकी दूसरी अहलिया सना जावेद ने भी खसूसी पोस्ट शेयर की। सना जावेद ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी में लिखा कि माशाअल्लाह, मुझे आप पर बहुत फख्र है। पाकिस्तानी अदाकारा आयशा उमर का कहना है कि आज भी उनके कुछ रिश्तेदार माजी की अफवाहों को सच समझते हैं। आयशा उमर ने सोशल मीडिया के मनफी पहलुओं पर बात करते हुए कहा कि मेरे साथ तो क्या क्या नहीं हुआ, पहले मैं बहुत खौफजदा हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पर मेरी निजी तस्वीर गर्दिश करती रही, बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा चुकी हैं, लोगों ने शोएब मलिक के साथ मेरी शादी करा दी थी। अदाकारा ने मजीद कहा कि मेरे खानदान के कुछ लोग आज भी समझते हैं कि माजी की अफवाहें सच थीं और मेरी और शोएब की शादी हो चुकी है। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें मेरे इंतखाब उसूलों के बारे में अच्छी तरह इल्म है। और ऑस्ट्रेलिया के जारी मसाज मिडल ऑर्डर बैटर ग्लेन मैक्सवेल को रात देर गए पार्टी में जरूरत से ज्यादा शराब पीने के बाद अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक ओवल में खेले गए टेस्ट में शरीक ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों ने भी इस कॉन्सर्ट में शिरकत की। ताहम मैक्सवेल अलहदा से कॉन्सर्ट में पहुंचे थे। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदा सूरत हाल में बेहतरी आने के बाद दोनों ममालिक के सफीर 26 जनवरी से अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे।
तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया कि पाकिस्तान और ईरान ने दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा की मुलाकात के बाद इस बात पर इत्तफाक किया है कि इस्लामाबाद और तेहरान के सफीर 26 जनवरी से दोबारा अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की दावत पर ईरानी वज़ीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल निहान 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। ईरान में बलोच लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों पर पाकिस्तानी स्ट्राइक के नतीजे में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की इब्तदाई तफसीलात सामने आ गई हैं। हलाक दहशतगर्दों में दोस्ता उर्फ चेयरमैन, साहिल उर्फ शुफक, मोहम्मद वजीर उर्फ बाजू, सरवर वल्द असगर और बजर उर्फ सौगात शामिल हैं। स्ट्राइक के नतीजे में हलाक दहशतगर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन जिला पंजगोर का रिहायशी था, जिसने 2013 में बलोच लिबरेशन फ्रंट में शमूलियत इख्तियार की। ये BLF के कमांडर फजल शेर उर्फ ताहिर ग्रुप का रुकन था। हलाक होने वाले दहशतगर्दों के साथ साथ असगर उर्फ बशाम का बेटा सरवर भी शामिल है। हलाक दहशतगर्दों में साहिल लंग उर्फ शुफक भी शामिल था, जो मासूम पाकिस्तानियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस रहा। साहिल लंग दहशतगर्द बुलबुल का भाई था, जो मार्केट और हरनाई के इलाके में भत्ते और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन के नायब वजीर खारजा सिन विडोंग ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफा दिफाई ताउन पर मजीद बढ़ाने के इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की मुश्तरका सोच पर कायम है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात दोनों ममालिक के अवाम की खुशहाली की मुश्तरका सोच पर कायम है। इस मौका पर चीनी नायब वजीर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान और चीन हर तरह के हालात में स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीनी नायब वजीर खारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ किया। CPEC मंसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर चीन के इत्मीनान से भी आगाह किया। पाकिस्तान को बिगाड़ने वाले उसे बिगाड़ कर चले गए और उसे बिगाड़ने वालों को वोट KP वालों ने ही दिया था। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मानसेरा में जलसे से खिताब, कहा KPK वाले बताएं सूबे में क्या कोई तब्दीली आई, क्या नया पाकिस्तान बन गया। 2013 के इलेक्शन में फजलुर रहमान मेरे पास आए और कहा कि मेरे पास अभी अरकान असम्बली बहुत हैं, आप और हमारी हुकूमत मिलकर KP में हुकूमत बना सकते हैं। इस पर मैंने जवाब दिया कि अदद के एतबार से PTI की चंद नशिस्तें हमसे ज्यादा हैं, इसलिए हुकूमत उन्हें ही बनानी चाहिए और उन्हें सूबे में हुकूमत मिली, मगर उन्होंने इस सूबे का बुरा हाल कर दिया। नवाज शरीफ ने मानसेहरा वालों से सवाल किया कि जिसकी यहां 10 साल हुकूमत रही उसने यहां क्या काम किया। KPK वालों, आप लोग भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। वोट तो आपने दिया था और हुकूमत उसकी यहां पर थी। मैं वजीर आजम था, लेकिन यहां वजीर आला कोई और था। क्या KP में कोई तब्दीली आई? हमारी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने दी जाती तो अगली हुकूमत भी हमारी ही होती। मानसेहरा को इस सूबे का सबसे बेहतरीन शहर बनना चाहिए। पिछली हुकूमत ने सखर से आगे मोटरवे नहीं बनाया। बाइज्जत ट्रांसपोर्ट अवाम का वैसे ही हक है। हम यहाँ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाएंगे। की वाटर सप्लाई के लिए शुगरान से पानी लेकर आएंगे। गैस, सब्जी, पेट्रोल सस्ता फराहम करेंगे। रोजगार मिलेगा। अगर नवाज शरीफ को ये जज ना निकालते, ये 5 जज अपने मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ को ना निकालते, आज इस शहर में मानसेरा में एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट होता, खूबसूरत तरीन ये शहर होता और ऐन मुमकिन है खूबसूरत तरीन एक मेट्रो बस होती यहाँ पे, और इस्लामाबाद से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर मुजफ्फराबाद तक एक खूबसूरत ट्रेन होती, ट्रेन रेलगाड़ी और होती, और इसी दौर में होती है 2022 से पहले मुकम्मल हो चुकी हो। और अब आपको बताएं कि यौम में फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक बलोचिस्तान के जिला के इलाके संबाजा सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। कब्जे से असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि आज जो भुगत रहे हैं उन्हें कोई बददुआ नहीं देना चाहती। मासेरा जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि जो लोग मिलियन ट्री सोनामी का नारा लगा कर आए वो पहले से लगे हुए दरख्तों की लकड़ी भी बेचकर चलते बने। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजुर्बागाह नहीं कि आए तजुर्बा किया और चल दिए। मुझे अफसोस है उस इंसान ने आपका भला नहीं सोचा। पेशावर मेट्रो बस चलती कम और जलती ज्यादा है। जो 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करके गए वो कोई एक अस्पताल, कोई स्कूल, कोई मेट्रो बस दिखा दें जो यहाँ के लोगों के लिए बनाई हो। ना तूफान देखा ना मौसम देखा, एक एक इंसान की मानसेरे वाले की खिदमत में वो हाजिर रहे। और मैं जानती हूं वजीर आजम चाहे नवाज शरीफ साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब से अगर और नवाज शरीफ साहब से अगर कैप्टन सफदर ने बात की है तो मानसेरा के तरक्याती मंसूबों की बात, कि मानसेरा में कोई सड़क बन जाए, कोई हॉस्पिटल बन जाए, कोई कॉलेज बन जाए, कोई यूनिवर्सिटी बन जाए, मानसेरा में गैस आ जाए। और ये मैं बार बार उनसे सुनती हूं कि दूर दराज जो इलाके हैं तोरगर वगैरह के वहां सड़क बन जाए कि वहां खवातीन अस्पताल लाते लाते उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को शिकस्त देने के लिए पीटीआई के कारकुनों का साथ मांग लिया है। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ के गढ़ लाहौर में पावर शो किया, जिस दौरान जलसे में शरीक उनकी बहन आसफा भुट्टो भी कारकुनों का जोश बढ़ाती रहीं। खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासी मुखालफिन की बहनों और बेटियों को जेलों में डालना सियासत नहीं, नून लीग पीटीआई कारकुनों से इंतकाम ले रही है। उधर बेनजीर भुट्टो की साहिबजादी आसफा भुट्टो की बिलावल हाउस में जालों से मुलाकात हुई। N127 में इंतखाबी मुहिम मजीद तेज करने की हिदायत की। आसफा भुट्टो बोली, बिलावल भुट्टो का 10 नकाती एजेंडा पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है और आम आदमी को महंगाई बेरोजगारी से निजात मिलेगी। आसफा भुट्टो का मजीद कहना था, अवाम ने शहर शहर होने वाले जलसों में मिसाली शिरकत करके पैगाम दे दिया है कि वो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं। पीपल्स पार्टी को वोट देना मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के मुतरादिफ होगा। 8 फरवरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत का दिन होगा। इस दिन तरक्की याफ्ता और रोशन पाकिस्तान का हकीकी सफर शुरू होगा। आसफा भुट्टो से मुलाकात करने वालों में आरिफा भुट्टो, सहर कामरान, फवाद जैदी, शाइस्ता असलम, सब्त हसन, नायाब जान, आयशा नवाज और मूसा खोखर शामिल थे। सकीना हसन, उस्मान एवान, बशारत अली, सारा राय, मियां नौमान, अम्मार, राय अरसलान, शेख इमरान, माहम आमिर, मारिक आमिर, डॉक्टर रिजवान, नासिर काजी और मायरा हाशमी और दीगर ने भी मुलाकात की। खबर दें कि चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की जगह मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नामजद करने का फैसला कर लिया गया है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में वज़ीर आज़म की 2 नामजदगियां होती हैं, एक मुस्तफा रमदे हैं और दूसरे अब मोहसिन नकवी का शामिल करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ही चेयरमैन मुंतखब किया जाता है। सहाफी ने मोहसिन नकवी से सवाल किया कि आपको चेयरमैन पीसीबी लगाया जा रहा है, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि क्या वाकई मुझे चेयरमैन पीसीबी लगाया जा रहा है। उन्होंने सर हिलाकर चेयरमैन पीसीबी से मुतालिक तस्दीक की और कहा कि कोशिश करूंगा कि क्रिकेट के मामलात भी तेजी से हल करूं। क्रिकेट में इस्तेलाहात बहुत जरूरी हैं। मुल्क की खदमत के लिए जो रोल मिला उसे पूरा करूंगा। अपनी काबीना में भी एक क्रिकेटर को वजीर बनाएंगे। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हमजा अब्बासी से। जी हमजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? कुछ रोज कबल साबिक चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ ने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह के तौर पर अपना जो इस्तीफ़ा था वो निगरान वज़ीर आला और आईपीसी को भिजवाया था और वो जो इस्तीफ़ा है वो आज निगरान वज़ीर आज़म पंजाब अनवारुल्लाह काकड़ ने जो है इस्तीफ़ा मंजूर किया और बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी के बाद जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी को जो है वो मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुंतखब किया गया और
इनका भी काम जो है वो इलेक्शंस करवाना है। इनको आज जब अपॉइंट किया गया, इनकी मीटिंग थी वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ के साथ, और उस मीटिंग के बाद ये फैसला किया गया। और गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी का ये कहना था कि मैं कोशिश करूंगा कि क्रिकेट के मामलात को भी जल्द हल करूं, और अपनी काबीना में जो है वो साबिक क्रिकेटर्स में से किसी एक को कुछ प्राइज दूं टीम के लिए, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो है वो मैं काम कर सकूं। और निगरान वज़ीर आला पंजाब जो मोहसिन रज़ा नकवी हैं, वो पिछले 1 साल से करीबन जो है लाहौर के वज़ीर आला भी मुंतखब हैं, और उनको जो है IPC की जानिब से मुंतखब किया गया। और उनके उनके प्रायोरिटी में सबसे पहली चीज इलेक्शंस करवाना है PCB के, और PCB के इलेक्शंस करवा कर 10 से 12 रुकनी नई गवर्निंग बॉडी जो है एज पर ICC रूल्स वो मुंतखब करना है। और जो चीफ सेलेक्टर हैं वहाब रियाज, पहले तो उनका नाम भी ज़ेरे गौर था, रमीज राजा थे उनका नाम भी ज़ेरे गौर था, नजम सेठी साहब का था, लेकिन आज जो मंजूरी दी गई है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की बतौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह के तौर पर इनके नाम की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। जी ठीक है हमजा अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब मैंने 128 से PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने कुरान पर हल्फ ले लिया है। सलमान अकरम राजा ने हल्फ लेते हुए कहा, सबसे पहले मैं खुद कुरान पाक पर हल्फ लेता हूँ। मुंतखब होने के बाद हम ऐवान में PTI की पार्लिमानी पार्टी होंगे। मुंतखब होने पर PTI और बानी PTI का वफादार रहूंगा। पार्लियामेंट के अंदर मैं PTI की पार्लिमानी पार्टी का मेंबर रहूंगा और तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं PTI या बानी PTI से गद्दारी करूं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अफवाह फैलाई जा रही है, PTI उम्मीदवार जीतकर दीगर पार्टियों में चले जाएंगे। ये अफवाह है और सरासर गलत बात है। जिसने कागजात नामजदगी में कहा PTI का है, वो जीतकर भी वही रहेगा। इलेक्शन कमीशन का ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम आजाद हैं। PTI उम्मीदवार ने मजीद कहा कि मैंने कागजात नामजदगी में लिखा है मैं PTI का उम्मीदवार हूं। मैंने PTI की जानिब से जारी टिकट भी RO को जमा कराया, तो कोई मुझे किस तरह आजाद कह सकता है। सब उम्मीदवारों को कुरान पाक पर हल्फ लेना चाहिए। हम बानी और पार्टी के वफादार रहेंगे। हम किसी लालच और किसी खौफ में नहीं आएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारी असम्बलियां कुरान और हदीस से मुतसादम बिल पास करवाने वालों से भरी हुई है। कबीर स्टेडियम लकी मरवत में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दीगर पार्टियों ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है और एक मखसूस तबके का पेट भरा जा रहा है। हमारे मुल्क में सियासी पार्टियां हैं, लेकिन जमीयत ने नाजायज को कभी तस्लीम नहीं किया। 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई और इस नतीजे में हुकूमत आई, और वो लोग जो धांधली के खिलाफ हमारे साथ खड़े थे, आज वही लोग इसी धांधली वाली पार्टी का टिकट लेकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वोट की पर्ची एक आसान तरीन जहादी फॉर्म है और नजरियाती जंग है, मगर इसमें भी हम इधर उधर हो जाते हैं। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून वाले हमेशा डील करके इक्तदार में आते रहे हैं। लोग अब एक नई सोच की तरफ जाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने नई सोच का नारा दिया है। बिलावल भुट्टो सबसे बड़ा नारा दे रहे हैं कि तमाम पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाएं। PP चेयरमैन कह रहे हैं, मेरा नून लीग और PTI से मुकाबला नहीं, हमारा मुकाबला गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से है। मुश्किल से मुश्किल हालात में पीपल्स पार्टी ने इदारों पर हमले नहीं किए। जब भी मुस्लिम लीग नून को तकालीफ आई हैं तो उन्होंने सबको निशाना बनाया। मुस्लिम लीग नून ने मुखालिफ पार्टियों और इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। PTI ने भी इदारों के खिलाफ घटिया से घटिया हरकत की। इलेक्शन कमीशन ने सरगोदा से कौमी असम्बली के हल्कों NA83 और NA85 में इंतखाबात मुलतवी करने की रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिफिकेशन मंसूख कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने RO और DRO के फैसले की रोशनी में NA83 और 85 पर आजाद उम्मीदवार सादिक अली के इंतकाल के बायस इंतखाबात मुलतवी कर दिए थे।
माहिर मुइशत खुरम शहजाद ने कहा है कि 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करना मुमकिन नहीं। सियासी जमातों को इससे इज्तनाब बरतना चाहिए। सच बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इक्तदार में आने के बाद वही किया जाएगा जो IMF कह रहा होगा। उन्होंने कहा कि सोलर पावर से बहुत ज्यादा बिजली नहीं पैदा की जा सकती, हमें पानी से बिजली बनाने की तरफ जाना पड़ेगा। यह हो सकता है कि बिजली में शामिल किए गए टैक्स कम किए जाएं। बिजली के निर्खों को नीचे लाने के लिए कोशिशें की जानी चाहिए। और अब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि अदालती फैसले अवाम की मकबूलियत होते हैं, लेकिन पाकिस्तान और बैरून मुल्क अदलिया के खिलाफ घटिया और गलीज मुहिम चलाई गई है। PTA और FIA हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि आइन के आर्टिकल 19 में आज़ादी इज़हार राय से मुतालिक तफसीली तौर पर लिखा हुआ है, अदालती फैसले अवाम की मकबूलियत होते हैं, लेकिन अदलिया के खिलाफ मुल्क और बैरून मुल्क घटिया और गलीज मुहिम चलाई गई। अदम बर्दाश्त और झूठ के कल्चर की हौसला शिकनी होनी चाहिए। अदलिया के खिलाफ मुहिम JRT तश्कील दी गई है। अदलिया के खिलाफ मुहिम में शामिल कई सौ अकाउंट्स बंद किए गए हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने 8 फरवरी को शेड्यूल आम इंतखाबात के मुकम्मल बायकॉट का ऐलान कर दिया है। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में कहा कि इंतखाबात में चुनाव ही ना हो तो ऐसे इंतखाबात के क्या माने हैं। मुझे गिरफ्तार किया गया ताकि मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊं। हमारे कारकुनों को डराया धमकाया गया और गिरफ्तार किया गया। बिला जवाज हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। मेरे भाई के कागजात मंजूर हुए तो उन्हें नैब में मेरा शरीक मुलजिम बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन अपने फराइज की अंजामदही में बुरी तरह नाकाम हो गया है। इन हालात में मेरा ग्रुप इंतखाबात के मुकम्मल बायकॉट का ऐलान करता है। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर के इंतखाबी निशान से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को उन्हें मलका का निशान देने का हुक्म दिया है। जस्टिस शकील और जस्टिस वकार अहमद ने PTI के उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर की इंतखाबी निशान से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की, जिस दौरान अली अमीन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि अली अमीन NH44 DI खान और 2 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। और नाज़रीन, दुनिया भर के मुसलमानों की तरह पाकिस्तानी भी जल्द ही रमजान के मुकद्दस माह के लिए तैयारियां शुरू कर देंगे, क्योंकि मतवक्के आगाज की तारीख 2 माह से भी कम रह गई है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक पाकिस्तान में यकम रमजानुल मुबारक 11 मार्च को होगा। ताहम हतमी तारीख का ऐलान मरकजी रोयते हिलाल कमेटी चांद नजर आने के बाद करेगी। दुनिया भर के मुसलमान मार्च में रमजान का इस्तकबाल करेंगे। यूं रवां साल रमजानुल मुबारक 26 साल के बाद सर्दियों में आ रहा है। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लियाकत अली मलिक के हुक्म और SP साउथ आफ्ताब अहमद फुलरवान की हिदायत पर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट चूंकि DSP फारूक असगर अवान की कार्रवाई कत्ल अंधे कत्ल के मुल्जिमान समेत बैनुल सूबाई 3 गैंग्स के 12 अरकान गिरफ्तार कर लिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के DSP फारूक असगर अवान जो कि चूंग तैनात हैं, उन्होंने कत्ल अंधा कत्ल के मुल्जिमान समेत बैनुल सूबाई और 3 गैंग के 12 अरकान गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 1 करोड़ 5 लाख रुपए नकदी, जबकि मेहनत कश का ट्रैक्टर और नाजायज असला जो है वो बरामद कर लिया है। जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान का सरगना तसव्वुर आबाद, शौकत अली, बाबर अली, उस्मान और अफशानी, नजीर, अली शेर, शहजाद, इब्रार अहमद, मोहम्मद अब्बास, जवेद फरहान, जबकि अनवर और उसके साथी मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान के हवाले से मैं बताता चलूं कि मुल्जिमान से आला कत्ल, कुल्हाड़ी, रैफलें, पिस्टल और दर्जनों गोलियां भी बरामद की गई हैं। मुल्जिमान के खिलाफ थाना चूंग, निश्तर कॉलोनी और थाना मंडी फैजाबाद, जिला ननकाना साहब में कत्ल के मुकदमात दर्ज हैं। मुल्जिमान ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इलाका चूंग, निश्तर कॉलोनी और थाना मंडी फैजाबाद, जिला ननकाना साहब में 4 शहरियों को कत्ल करके उनके टुकड़े किए थे और नहर में बहा दिए थे। जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान में 5 A कैटेगरी के खतरनाक इश्तिहारी मुल्जिमान भी शामिल हैं। उनका कहना था कि चंद हफ्ते कबल मुल्जिमान ने इशफाक नामी शहरी को अगवा करने के बाद कत्ल करके लाश कुल्हाड़ी से टुकड़े की और नहर में फेंक दी थी। फरूक असगर अवान से जब मेरी बात हुई थी तो उनका कहना था कि मुल्जिमान ने चंद माह कबल दौरान वारदात मोहम्मद शाहिद नामी शहरी को इलाका चूंग में फायरिंग करके कत्ल भी किया था और गिरफ्तार मुल्जिमान साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं। रॉबरी, नकबजनी और डकैती जैसी संगीन नवैयत की दर्जनों वारदात का भी इन्होंने इंकशाफ किया है। फरूक असगर अवान के मुताबिक मुल्जिमान लाहौर, इस्लामाबाद और कराची समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में असला के जोर पर
वारदातें करके शहरियों का कीमती सामान लूट कर फरार हो जाते थे। उनका ये भी कहना था कि मुल्जमान को जदीद टेक्नोलॉजी, IT एक्सपर्ट, CCTV फुटेज, पब्लिक रिलेशन और तजर्बाकार अफसरान की मदद से मुख्तसर वक्त में जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जबकि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लाहौर की कार्रवाइयां मजीद जारी हैं। उनका ये भी कहना था कि मुल्जमान को प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से सख्त सजा दिलवाई जाएगी और उनका कहना था कि शहरियों की जान, माल, इज्जत का तहफ्फुज़ ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लाहौर की अवलीन तरजीह है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई थी, जिस तरह से आफ्ताब फुलरवान SP तैनात हैं CIA, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्जमान इंतहाई खतरनाक थे। जी ठीक है वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया आपका। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में शोबा सोशियोलॉजी एंड जेंडर स्टडीज के ज़ेर एहतमाम सलमान आबिद की किताब मकामी हुकूमतों का मुकदमा की तकरीब रोनुमाई हुई। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा कि इख्तियारात की मकामी सतह पर मुंतकिली के जरिए से हम पाकिस्तान में मकामी आबादियों की फैसला साजी में शमूलियत को आसान बना सकते हैं। मकामी हुकूमतों का निज़ाम गवर्नेंस का बेहतरीन मॉडल है। बलोचिस्तान में मकामी हुकूमतों का निज़ाम नाफिज करने से वहां पर दहशत गर्दी का खात्मा करके अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जा सकता है। तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर फलीहा जहरा काजमी, पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टर अमजद मक्सी, एंकर पर्सन बतूल राजपूत, रजिस्ट्रार शजात मुनीफ कुरैशी, डायरेक्टर एकेडमिक्स डॉक्टर तैयबा सुहेल, डॉक्टर आयशा बिलाल समेत असातिज़ा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। निगरान वज़ीर हाउसिंग असफर अली नासिर और कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत बंद रोड मंसूबे बारे साइट ऑफिस में इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब के बंद रोड मंसूबे के विजिट के बाद दी गई हिदायत की रोशनी में एक्शन प्लान मुरतब किया गया है। चीफ इंजीनियर LDA स्टार सईद और दोनों पैकेज के कॉन्ट्रैक्टर ने तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में दोनों पैकेजेस के बकिया काम की तकमील के बारे में लाहे अमल पेश किया गया। पैकेज 1 के हाई राइज एरिया में NJ बैरियर और स्पोर्ट का अमल तेजी से जारी है। वजीर हाउसिंग ने बुड्ढा रावी पुल पर जारी कामों में तेजी लाने की हिदायत की। इजलास में चीफ इंजीनियर LDA स्टार सईद, पैकेज 1 और पैकेज 2 के कॉन्ट्रैक्टर नेस्पाक और LDA के अफसरान ने शिरकत की। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की मकामी होटल में नेशनल एक्शन प्लान फॉर हेल्थ सिक्योरिटी प्रोविंशियल ऑपरेशनल प्लानिंग वर्कशॉप में शिरकत की। वर्कशॉप की सदारत निगरान विफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने की। वर्कशॉप में सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर, DG हेल्थ डॉक्टर इलियास गोंदल, UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, UK इंटरनेशनल डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड केयर के नुमाइंदगान ने शिरकत की। शुरका ने कहा, हेल्थ सिक्योरिटी हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी में हेल्थ सिक्योरिटी सर फहरिस्त होनी चाहिए। अवाम तक सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए वफाक और पंजाब के दरमियान इंतहाई बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि साबिक कप्तान शोएब मलिक की अदाकारा सना जावेद से दूसरी शादी के ऐलान के बाद जहां दोनों शख्सियात के लिए मुबारकबादों का सिलसिला जारी है, वहीं शोएब मलिक की पुरानी कई वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। शोएब मलिक की साबिक स्पीड स्टार शोएब अख्तर के साथ निजी TV के शो में की जाने वाली गुफ्तगू भी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें साबिक कप्तान लड़कियों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। इंटरव्यू में शोएब अख्तर ने शोएब मलिक से सवाल किया कि वो कौन सी 5 लड़कियां हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, चाहे फिर उनका ताल्लुक किसी भी इंडस्ट्री से हो। इस सवाल के जवाब में शोएब मलिक ने कहा कि मुझे सारी लड़कियां अच्छी लगती हैं। दूसरी जानिब भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की पुरानी वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जहनियत पर तनकीद की है। वीडियो में वहाब रियाज कहते हैं कि हाँ जी, बेचारी लड़कियां ही मासूम होती हैं, हम तो बेचारे बुरे लोग हैं, लड़कियों को कोई अच्छी आदत ही नहीं होती। वहाब रियाज की बात काटते हुए शोएब मलिक ने कहा कि हमारा ये है कि हम पैदा होते हैं, हमें प्यार मिलता है, उसके बाद डांस से काम शुरू होता है, पहले वालिदैन से, फिर बीवियों से, और फिर ये सिलसिला जारी रहता है। शोएब मलिक की बात मुकम्मल होते ही सानिया मिर्जा कहती हैं, मैं इस शो के जरिए तमाम लोगों को एक बात कहना चाहूंगी और मेरे ख्याल से ज़ैनब भी इत्तफाक करेंगी कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स का पसंदीदा मौजू बीवियों का मजाक उड़ाना है। मजीद आपको बताएं कि शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा और मॉडल सना जावेद ने अपने दूसरे शोहर शोएब मलिक की कामयाबी पर सोशल मीडिया पर पैगाम जारी कर दिया है।
कौमी क्रिकेट की इस कामयाबी पर जहां उनके मद्दाहों ने उन्हें मुबारकबाद दी, तो वहीं उनकी दूसरी अहलिया सना जावेद ने भी खसूसी पोस्ट शेयर की है। सना जावेद ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी में लिखा कि माशाअल्लाह, मुझे आप पर बहुत फख्र है। पाकिस्तानी अदाकारा आयशा उमर का कहना है कि आज भी उनके कुछ रिश्तेदार माजी की अफवाहों को सच समझते हैं। आयशा उमर ने सोशल मीडिया के मनफी पहलुओं पर बात करते हुए कहा कि मेरे साथ तो क्या क्या नहीं हुआ। पहले मैं बहुत खौफजदा हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पर मेरी निजी तस्वीर गर्दिश करती रही, बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा चुकी हैं। लोगों ने शुएब मलिक के साथ मेरी शादी करा दी थी। अदाकारा ने मजीद कहा कि मेरे खानदान के कुछ लोग आज भी समझते हैं कि माजी की अफवाहें सच थी और मेरी और शुएब की शादी हो चुकी है। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें मेरे इंतखाब उसूलों के बारे में अच्छी तरह इल्म है। ऑस्ट्रेलिया के जारे मसाज मिडल ऑर्डर बैटल मैक्सवेल को रात देर गए पार्टी में जरूरत से ज्यादा शराब पीने के बायस अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओवल में खेले गए टेस्ट में शरीक ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों ने भी इस कॉन्सर्ट में शिरकत की, ताहम मैक्सवेल अलहदा से कॉन्सर्ट में पहुंचे थे। और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने गजा के बच्चों की मदद के लिए अपने जूते नीलाम करने का ऐलान कर दिया है। उस्मान ख्वाजा ने अपने जूतों की नीलामी का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया, जहां उन्होंने जूतों की तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि मैं अपने जूते नीलाम कर रहा हूं और नीलामी 12 फरवरी को खत्म होगी। उस्मान ख्वाजा ने कहा कि बच्चों को आपकी मदद की पहले से बहुत ज्यादा जरूरत है। तमाम आमदनी यूनिसेफ चिल्ड्रन ऑफ गजा अपील के लिए होगी। पाकिस्तान के कतर में अफरादी कुव्वत के मौके को बढ़ाने के लिए अहम मुआहदों पर दस्तखत। मामले खसूसी जवाद सोहराब मलिक ने 3 अहम कतरी वज़रा के साथ इनफरादी 1-to-1 मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान और कतर के दरमियान कतर में पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। दौरे के दौरान कतर की अहम कंपनीज के साथ मुताबिक मुआहदों पर दस्तखत किए गए। इस इकदाम से कतर में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के लिए रोजगार के मौके में नुमाया इजाफा होगा। जवाद सोहराब मलिक बोले, मुआहदे इंसानी वसाइल की तरक्की के मैदान में पाकिस्तान और कतर के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में एक अहम कदम है। आपको एक बार फिर से बताते चलें, पाकिस्तान के कतर में अफरादी कुव्वत के मौके को बढ़ाने के लिए अहम मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। मुआहदे खुसूसी जवाद सोहराब मलिक ने 3 अहम कतरी वज़रा के साथ इनफरादी 1-to-1 मुलाकातें की। पाकिस्तान और कतर के दरमियान कतर में पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए मुआहदों पर दस्तखत किए गए। दौरे के दौरान कतर की अहम कंपनीज के साथ मुतादिद मुआहदों पर दस्तखत किए गए। इस इकदाम से कतर में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के लिए रोजगार के मौकों में नुमाया इजाफा होगा। जवाद सोहराब मलिक बोले, मुआहदे इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए मैदान में पाकिस्तान और कतर के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में एक अहम कदम है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।